Hello, good evening. Am I visible? Am I audible? Please give a comment, please. If you can see me and you can hear me, please give a comment. Okay. Please let me know whether am I visible. Okay. I am audible and I am visible also. That's good. So let us start. So friends, very good evening to all of you. And on behalf of the Barkatullah University Bhopal, I welcome you all in this wonderful event organized by Dr. Shailen Sharma. Let me first congratulate him for organizing such a wonderful event, and especially as Zoological Society of India, the Executive Committee, and Professor Pandey Sahab and other luminaries in the field of zoology who joined this webinar and presented their experiences, their knowledge. They shared their knowledge with our, particularly for our youngsters. It is very beneficial, very useful webinar in such a lockdown condition. So thank you very much, Dr. Shailen, for giving me this opportunity to discuss a few things which is very close to my heart, and that is river ecology. And this today's my talk or my interaction with is particularly, it is for the youngsters who are working, either they are working in the field of ecology or they are working in any field of zoology, ecology or life science. But the topic river ecology is it's a common topic, and many times I say that this particularly environmental science and ecology, there is nothing science in it. Actually, it is all common sense. You will appreciate it, that most of the things in environmental science or ecology, it is common sense, and we have arranged the things in the form of a science, and that is known as ecology or environmental science, or so many other terminology has been given. So today we will discuss about river ecology, and we friends, we have been listening particularly in this lockdown period, that most of the rivers in the country, lots of videos and photographs are pouring in the websites and in the Facebook and in your WhatsApp and other platforms, that rivers are getting clear because of very limited human interference. And this is one of the reason that it is very clear that the rivers and water bodies were mainly they were disturbed because of the human interference and industries and other things. Although industries are not meant for any other planet, actually they are producing goods for you and me, so we are also equally responsible if industries are polluting the rivers. So today what I want to interact with the youngsters, that I will discuss some basic issues in river ecology, which are sometimes they are ignored even by the ecologists when they are working. And many times we do a stereotypic study like water quality of river, this biodiversity of river, but we pay very less attention towards the river habitats which are available in the river, in the water body. And these habitats, these hidden aspects of river, they play very important role in the overall functioning of the river and to keep the river alive. You see, in many cases it has been stated that rivers are living entity, and in some cases
some high courts and Supreme Court has also given their rulings that yes, rivers are living entity, they should be treated as living entity. So why they are living entity? Because they are supporting biodiversity, and this biodiversity they are supporting because they are providing variety of habitats, a diversity of habitats they are providing to the biodiversity. That's why a rich biota is found in the rivers, and that's why rivers are supposed to be a living entity. So I have prepared a presentation also. I'll try to present that also, although I have done some जैसा हिंदुस्तान में होता है कुछ जुगाड़ लगाई गई है डायरेक्टली इस पर. आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन इन फेसबुक, सो आई डिड सम जुगाड़. जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऑलवेज इट्स वेरी हेल्पफुल. सो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, और फिर हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे. तो मैं थोड़ा सा अपने इसका कैमरे का डायरेक्शन, आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ माय कैमरा एंड देन आई विल ट्राई टू just a minute. I think now you can see the screen of my laptop, although it is not very clear, but at least you will find something on it. So river habitat is the home of biodiversity which the rivers are providing. See, rivers are supposed to be a flowing water body with two banks, and there is a river bed beneath the river. But rivers are not only a water body which is flowing between two banks. Actually, it has a lateral connectivity with its catchment, its riparian zone, its surrounding area, and these areas and these elements play very important role. So earlier it was supposed that rivers are a flowing water body between two banks, but it is not true nowadays, and people are paying attention towards the surroundings of the river. There are so many other factors which were earlier neglected, but now people are paying attention, and it is very rightly they are being considered by the river ecologists in their studies, and the results we are finding, they are wonderful and very helpful in conservation of rivers. Its dynamic nature, upstream water flows to downstream. It's a matter of gradient only. Water falls on the surface, it finds the slope, and then it flows to the, and it forms the river, and amount of water fluctuate, and river bed also keep on changing every time. Now the term comes watershed. We very often listen watershed and this basin, river basin. So what is a watershed? What is river basin actually? So you can see here in this graphic, you can see that there is a stream network, and you will find that numbers are written there, number 1, number 2, number 3. So what is this? Whenever waterfall, जब भी बारिश होती है तो हमारे आसपास जो पानी गिरता है, तो वो पानी बहते हुए कहीं एक तरफ किसी डायरेक्शन में जाता है. एक्चुअली जब बारिश होती है और पहली बार जहाँ पानी गिरना शुरू होता है और पहली छोटी छोटी पतली धाराएं बनती हैं, these small streams or rivulets, they are called as first order streams, and when two first order streams join together they form second order stream, and likewise third order stream and fourth order stream. The rivers we are seeing today, large rivers like Narmada and Tapti, Betwa, Shipra, Chambal, most of these rivers are either 8th order river or 9th order river or so. But actually the sea, अगर हम नर्मदा को देखते हैं, it is, suppose it is 9th order stream, but its actual existence starts from here as first order stream.
तो यहाँ से ये नदी शुरू होती है, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम में आती है, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम में आती है, अल्टीमेटली 8th ऑर्डर, 9th ऑर्डर, 10th ऑर्डर स्ट्रीम बनाती है। तो ये जो अलग अलग साइज़ होते हैं, ये अलग अलग जो स्ट्रीम्स होती हैं, ये मिल के रिवर बनाती हैं। और इसका पूरा का पूरा नदियों का कुनबा होता है, आप कह लें इसका कि एक पूरा कुनबा होता है एक नदी का। अगर नर्मदा को हम देखते हैं तो बड़ी चौड़ी सी एक नदी बहते हुए दिखती है, चंबल को देखते हैं, लेकिन इस नदी का कुनबा होता है बहुत छोटी छोटी धाराओं तक जाता है। तो ये लेटरल कनेक्टिविटी होती है, इसको स्ट्रीम ऑर्डरिंग या रिवर ऑर्डरिंग कहते हैं। सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ए रिवर एक्चुअली। लाइक आप अगर अमरकंटक में जाएंगे या हमारे मालवा के जो लोग रहते हैं, ये अगर शिप्रा या चंबल के ओरिजिन के क्षेत्र में जाएंगे जो इनके क्षेत्रों के आसपास ही है, तो आप पाएंगे कि बहुत पतली सी धारा आपको चंबल की या शिप्रा की यू विल फाइंड। सो दिस इज़ द स्ट्रीम ऑर्डर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे ऐसे ही छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके चर्चा करूँगा और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र से निवेदन करूँगा कि जैसे ही मेरा समय समाप्त होता मुझे कृपया सूचित कर दें, मैसेज के थ्रू या फ़ोन करके। ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वाटरशेड मैप ऑफ नर्मदा पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ होशंगाबाद। ये होशंगाबाद बुधनी का एरिया है, यहाँ पे कहीं होशंगाबाद है। और ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स देखिए आके मिल रही हैं। ये गडरिया नाला है, इस तरह के 4-5 नाले आके मिलते हैं। ये पूरा बुधनी घाट का फॉरेस्टेड एरिया है। और ये इस तरफ से तवा नदी आके मिलती है तवा रिजर्वायर के बाद में। तो यू विल फाइंड हियर वेरी स्मॉल ब्लू कलर स्ट्रीम्स, देन रेड कलर स्ट्रीम्स, देन सम अदर। ये अलग अलग ऑर्डर से, इसमें बहुत छोटा है मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन अलग अलग कलर से अलग अलग ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम्स जो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी रिवर बनती है। ये अगर यहाँ पानी है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्ट्रीम्स। अगर यहाँ पे पोल्यूशन है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन दिस कैचमेंट एरिया। सो विल सी अनदर मैप, यू कैन सी द सेम एरिया। इसमें आप देखिए लैंड यूज़ लैंड कवर है। लैंड यूज़ लैंड कवर मतलब वो एरिया किस चीज़ में उपयोग हो रहा है। आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरा फॉरेस्टेड लैंड है। और ये जो येलो कलर का एरिया, ये एग्रीकल्चर लैंड है। और यहीं से ये नदियाँ हमारी छोटी छोटी बह के आ रही हैं। तो यहाँ से तो अच्छा पानी आता है जब नदियाँ आती हैं पहाड़ों से। और ये पहाड़ी एरिया भी है। मैं इसमें एलिवेशन मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी आपको, DEM भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये पहाड़ी एरिया है। बुधनी के घाट आपने देखे होंगे भोपाल से होशंगाबाद की ओर जाते हुए। तो ये एरिया, ये येलो जो दिख रहा है, ये एग्रीकल्चर है। आप इस तरफ देखिए, दिस इज़ ऑल एग्रीकल्चर लैंड, दिस इज़ ऑल फॉरेस्ट लैंड, दिस इज़ ह्यूमन हैबिटेशन। ये होशंगाबाद है, ये इटारसी हुआ मेरे ख्याल से, और ये दूसरे इस तरीके के छोटे छोटे हैबिटेशन है। तो ये जो कैचमेंट का लैंड यूज़ होता है, ये पूरी रिवर की इकोलॉजी को गवर्न करता है, उसको निर्धारित करता है। किसी बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि वैली गवर्न्स द स्ट्रीम। जो वैली होती है, जो बेसिन होता है, वो पूरी स्ट्रीम को गवर्न करता है। तो ये सही मायने में हमने कई तरह की स्टडीज़ में देखा है। तो स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्ट्रीम के, जो हम अभी आगे बात करेंगे। सबस्ट्रेट होता है, हम नदी में कभी भी जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं। बोल्डर्स होते हैं, रेत होती है, मिट्टी होती है। रिपेरियन बफर जोन होता है, नदी के दोनों तरफ देयर इज़ अ स्ट्रिप विच इज़ नोन एज रिपेरियन जोन। इट शुड बी वेल वेजिटेटेड। Then biological communities, being a zoologist, we have studies these biological communities, physico-chemical properties. We very often we study physico-chemical properties of water, and we all know about these two aspects of river ecology. But these aspects, the other 3-4 aspects, are very little attention has been given to these aspects, and I want to make people aware about these very important aspects also. सो स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी, इफ़ वी सी स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी, एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ का नदी के जो किनारे होते हैं, जो दोनों बैंक्स होते हैं, स्लोप होता है। डेफिनेटली रिवर्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ आती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। ये आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये नक्शा भी नर्मदा नदी का होशंगाबाद और होशंगाबाद के आसपास का जो एरिया है वो एरिया लिया गया। आप देखेंगे यहाँ से नदी बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, यहाँ आके थोड़ी सी मुड़ गई है, और यहाँ नीचे आती तो ये बहुत ज़्यादा घुमावदार हो गई है। तो ये नदी का जो, जिसको मेंडरिंग कहते हैं या मेंडर पैटर्न कहते हैं, नदी का घुमाव जो मोड़ होता है, ये रिवर इकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे ज़्यादा घुमाव होगा वहाँ पे बहुत तरह के हैबिटेट्स फॉर्म होंगे और आपको बहुत अच्छा बायोटा मिलेगा। लेकिन अगर ये घुमाव हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि नदी में बहुत अच्छे हैबिटेट हमको दिखाई नहीं देंगे। तो ये मेंडर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी स्टडी करते हैं तो हम नॉर्मली
एक दो जगह से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते कि जिस जगह से हमने सैंपल कलेक्ट किया वहाँ पे मींडरिंग पैटर्न कैसा है, और इसको बड़े आसानी से स्टडी किया जा सकता है। बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कभी आगे डॉक्टर शैलेन अवसर देंगे तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तो बड़े कॉमन है, हम सभी स्टडी करते हैं, मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा नहीं बोलने की ज़रूरत है। लेकिन ये ही वो फैक्टर्स हैं जिससे हम रिवर की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को असेस करते हैं, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ से या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर बजट होता है, कितना फ्लो है, कैसा सर्कुलेशन है, आसपास की जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है। जियोमॉर्फोलॉजी और रॉक्स जिस तरह की हैं वो यहाँ की वाटर क्वालिटी को भी निर्धारित करेंगे, उसी तरह के सॉल्ट्स हमको इसमें मिलेंगे, उसी तरह के हमको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे। हीट बजट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे बहुत सारे एनिमल्स का वहाँ पर होना, पाया जाना, नहीं पाया जाना निर्धारित होता है। सेडिमेंट टाइप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किस तरह का सेडिमेंट है, रॉकी सेडिमेंट है या फाइन सेडिमेंट है, तो ये भी अभी हम आगे देखेंगे। और लाइट पेनिट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, ये दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ everybody knows about these parameters, so there is no need to explain them. Biological we all know, plankton are there, periphyton are there, benthic animals are found, fishes, birds, they are very common. So these are the biological properties of a river. Now earlier we have discussed part of a stream. एक स्ट्रीम जब बहती है तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे नदियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ बहाव से बहती हैं, कल 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 की ध्वनि सुनाई देती है। This area is called riffle. You can see here in this picture, although this picture may not be very clear because I am showing from my laptop through my mobile phone. So आपने देखा होगा, लेकिन कई जगह पे नदियों में चट्टानें होती हैं जहाँ पानी रुकता है और उसके बाद बहुत तेज़ी से बहता है, एक कलकल करती हुई धाराएं बहती हैं, और वो जो कलकल करती हुई धाराएं बहती हैं वो एरिया कहलाता है नदी में रिफल एरिया। उसके बाद एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पानी बड़ा स्मूथ, लेमिनार फ्लो जिसको कहते हैं, बड़ा स्मूथली बहता रहता है। और कई बार समटाइम्स भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ बहाव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहाव होता है, और वो लेमिनार फ्लो या जो स्मूथ बहाव होता है उस एरिया को हम ग्लाइड या रन कहते हैं। ये आप देखिए, ये एरिया ग्लाइड या रन कहलाता है। अब एक इस चित्र में आपको एक छोटी सी स्ट्रीम है, केरवा स्ट्रीम भोपाल के पास में है, ये रिफल एरिया है जहाँ से पानी थोड़ा कलकल कहते हैं। अब नदियों को तो कहते ही ना कलकल बहती नदियाँ, कलकल बहते झरने, इसका मतलब है कि कलकल बहना साहित्य में नहीं, रिवर इकोलॉजी में भी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ आपको अलग टाइप का बायोटा मिलेगा, यहाँ आपको अलग टाइप का बायोटा मिलेगा। तो ये दो अलग अलग हैबिटेट यहीं क्रिएट हो गई। इसी तरह आगे जाते हैं तो पूल्स होते हैं, डीप पूल्स होते हैं, जिसको हम जैसे नर्मदा में आप जाएंगे तो बड़े बड़े डीप पूल्स हैं। ये डीप पूल्स कई जगह इनको डोह कहते हैं, कई जगह इनको कुंड कहते हैं। कुंड के नाम से कई अमृत कुंड है, ये कुंड है, वो कुंड है, राम कुंड है, श्याम कुंड है, बहुत सारे कुंड है जिनके साथ हमारी धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली दीज पूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिवर इकोलॉजी। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली इन समर सीजन, जब नदी का बहाव थोड़ा सा कम हो जाता है और कई जगह नदी शैलो हो जाती है, कई जगह सूख भी जाती है, धारा टूट जाती है। तो ये जो गहरे कुंड होते हैं, ये गहरे कुंड नदियों में पाई जाने वाली कई प्रकार की मछलियों के लिए दे एक्ट एज रिफ्यूजिया फॉर द फिशेस। सो ये उनके आश्रय स्थल बन जाते हैं। और जब इसके बाद जब बारिश होती है, जब नदी वापस आपस में जो धाराएं जुड़ जाती हैं, तो मछलियां यहाँ से निकल के अपने अपने ब्रीडिंग एरियाज़ में चली जाती हैं और वहाँ पे ब्रीड करती हैं, और अगले साल फिर इन रिफ्यूजिया में, अपने रिफ्यूज में आके ये अपना समर सीज़न बिताती हैं। तो इस प्रकार नदी में रिफल, रन या ग्लाइड और पूल, ये तीनों जो रिवर मॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं या रिवर के तीन पार्ट्स होते हैं, ये तीनों का जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो, इनका सही तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो नदी में बहुत अच्छी हैबिटेट बनती है। थोड़े समय में, थोड़े दूरी चलने के बाद रिफल आए, फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद ग्लाइड आए, फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद एक पूल आए। तो ऐसा ही इनका पूरा अगर कंपोजिशन होता है तो बहुत अच्छा हैबिटेट नदी प्रोवाइड करती है। तो जब भी हम रिवर स्टडी करें, तो अगर हमने किसी नदी का 100 किलोमीटर का हिस्सा ले लिया और अगर हमने उसमें सिर्फ पूल, रिफल और ग्लाइड्स या रन्स इतने आइडेंटिफाई कर दिए विद जीपीएस लोकेशन, तो एक बहुत अच्छा नक्शा तैयार होगा जो आगे इकोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प करेगा स्टडी करने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबस्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए, आपने किसी भी नदी में गए होंगे तो नर्मदा में खासकर जो लोग हैं, हम नदी में जैसे ही पैर रखते हैं हमको पता चलता है यहाँ पत्थर हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक चित्र है, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसमें कुछ छोटे पत्थर हैं,
पेबल्स हैं, कोबल्स हैं। चलिए मैं इसके आगे और बताता हूँ। ये देखिए, ये आपको कई चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये बड़े बड़े इसमें रॉक्स दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटे साइज़ के पत्थर हैं, ये जो हैं बोल्डर्स हैं, पेबल्स, कोबल्स हैं। इसके आगे आप यहाँ चलेंगे तो ये सैंडी आपको सेडिमेंट दिखाई दे रहा है, सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पूरी मड है। ये पूरा का पूरा सिल्ट यहाँ आके डिपॉजिट हुआ आसपास से। तो इस प्रकार से नदी का जो धरातल होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो भी अलग टाइप की हैबिटेट है। अब ये देखिए, ये इस तरह का अगर तल है तो अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, और अगर इस तरह का है तो अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। तो आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इसके इकोलॉजी में। अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं आपको एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये एक और हमने नदी में देखा होगा कि जब कभी हम किसी नदी में जाते हैं तो उसके आसपास जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं या बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ जो है धराशायी हो जाते हैं, नदियों में गिर जाते हैं। एंड दीज लार्ज वुडी डेब्रिस और मटेरियल, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजी। अगर आप बीइंग ए zoologist and ecologist we can understand their role, but if somebody who doesn't know about the woody debris, अगर वो जाएगा तो उसको लगेगा बड़ी गंदगी हो रही है, सब कचरा आके यहाँ इकट्ठा हो गया। बट एक्चुअली दीज वुडी डेब्रिस प्रोवाइड वेरी गुड हैबिटेट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ organisms. So like you can see here, there is a wood log lying in the river bed. This wood log is actually very good habitat for various types of animals and fishes, insects and so many type of animals. देखिए, ये इसके जस्ट पहले, वुड लॉग के पहले ये यहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, तो दिस हैज़ बिकम ए वेरी स्मॉल माइक्रो हैबिटेट यू कैन से। एंड behind this wood log is again a microhabitat. From both the sides water is flowing, it is again a microhabitat. So in this small wood log has created 4 or 5 different types of microhabitats. And if we very minutely if we study this wood log, you will find that different type of organisms you will find here, you will find different, here you will find, and this is in the flow you will find different type of organisms. You can see some leaves are collected here because of obstruction in the flow, and these leaves are also very important. In the next part of this presentation I will show you. लीफ पैक्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नदियों में हम देखते हैं पत्तियां पड़ी रहती हैं, आसपास के जो पेड़ होते हैं, जो रिपेरियन जोन के पेड़ या जो थोड़ा दूर भी होते हैं, उनकी पत्तियां आके इकट्ठी हो जाती हैं. एक्चुअली ये पत्तियां जब तक पेड़ों पर रहती हैं तब तक भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं. जब पेड़ों से आके नदी में इकट्ठी होती हैं तो वहाँ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. आप यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ स्मॉल लीफ पैक. दिस लीव्स आर लाइंग इन द river water. Some are on the margin on the bank and some are lying in the river water. Actually these leaves play very important role. They provide support to various types of organisms, insects, for egg laying, for food, and after decomposition they provide nutrient also to the river biota, to the primary producers, and they regulate the overall food chain and energy flow in the river. So they bring terrestrial organic matter in the aquatic ecosystem. So somehow they are known as exporter, or for river they are importers, and for terrestrial system they are exporters. This name has been given by me only. There is no such scientific terminology, but yes, they play very important role in the river ecosystem. So we should not ignore these leaves which are found in the stream. They also play very important role. So now this is riparian zone. If we see a small stream or a large river, we find that on the both banks, दोनों किनारों पे आपको बहुत अच्छे पेड़ दिखाई देंगे. खास करके अर्जुन के पेड़ होते हैं, एक कठ जामुन होती है जो मैं आपको लोकल भाषा में आपको बता रहा हूँ. इस तरह के बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो नदी के, ये आप देख रहे हैं, इस नदी के दोनों तरफ हैं. जिस नदी के दोनों तरफ ये रिपेरियन जोन में बहुत अच्छी वेजिटेशन होती है, और अकेले ट्रीज़ नहीं, इसमें छोटी, ये देखिए छोटे से इसमें श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, एंड लार्ज ट्रीज आर ऑल्सो देयर. दिस ऑल वेजिटेटिव कंपोजिशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी हेल्दी इकोसिस्टम ऑफ दिस रिवर. दे शुड बी वेल वेजिटेटेड,
and they should be green. There should be a green zone on both the side. Actually, what is the role of this riparian zone? They slow down the movement of water. फ्लडिंग वगैरह अगर होती है, इरोजन को रोकते हैं. ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों की जड़ें जो है वो दोनों किनारों को बांध के रखती हैं और इस प्रकार से इरोजन को रोकती हैं. फिल्टर का भी काम करते हैं. पॉइंट सोर्सेस के लिए तो हमने ट्रीटमेंट प्लांट बना लेते हैं, लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्सेस से पोल्यूशन आता है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या खास करके एग्रीकल्चर फील्ड से जब पोल्यूशन आता है, तो ये जो किनारे पे जो भी वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जो ग्रीन स्ट्रिप होती है, इट एक्ट्स एज फिल्टर्स. देन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं. इसकी कैनोपी होती है, आपने देखा होगा कई स्ट्रीम्स में दोनों तरफ से पेड़ आते हैं और नदी को या छोटी स्ट्रीम को ढक लेते हैं. वो जो ढक लेते हैं, वो जो शेडिंग इफेक्ट होता है, वो शेडिंग भी बहुत तरह के जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से वो बहुत तरह के एनिमल्स को सपोर्ट करता है. तो वो भी एक अलग टाइप की हैबिटेट क्रिएट करता है. शेडिंग ऑफ ट्रीज ऑन द रिवर और ऑन द स्ट्रीम, इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स. और जो पत्ते गिरते हैं वो तो मैंने आपको बताया, फूड सोर्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीव्स. ये रिपेरियन जोन आप देख रहे हैं, ये चित्र तो यहाँ का नहीं है, इसके पहले सारे चित्र तो हमारे मध्य प्रदेश के ही थे, लेकिन ये चित्र कहीं और का. लेकिन आप इसमें देखते हैं ये नदी बह रही है और इसके दोनों तरफ बहुत अच्छा वेजिटेशन है. हालांकि आप देखिए इसके थोड़ा सा आगे आप बढ़े रिपेरियन जोन के, तो ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, आप फार्म देख रहे हैं. तो लेकिन फिर भी रिपेरियन जोन को कहीं भी टच नहीं किया है एग्रीकल्चर लैंड बनाने के बावजूद भी. तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे हम रिपेरियन जोन को छेड़े बिना हम आसपास के लैंड यूज़ को थोड़ा बहुत उपयोग में ला सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एसेंशियल. Biological communities, I think we all know about this. Invertebrates, we all know, many of us are working on benthos and invertebrate. Dr. Shailendra is also working. This is the life cycle. I won't pay much time to this, but yes, functional feeding groups I will discuss. These aquatic macroinvertebrates, if we find, they can be divided on the basis of their feeding ecology or feeding guild. They can be divided into different categories, like shredders are there, grazers and scrapers are there. Some of them are collectors. They are filters, miners and browsers. Some are piercers and some are predators. What is the role of shredders? Shredders are actually, shredding is doing or cutting something in very small pieces, कुतरना जिसको कहते हैं. तो बहुत सारे श्रेडर्स होते हैं और ये जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, मैंने आपको बताया, इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेडर्स डिवाइड कर देते हैं. उसमें से कुछ वो खा लेते हैं, कुछ को वो छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो डिकम्पोज होता है. अब अगर पत्ते इसी बड़े बड़े पत्तों के फॉर्म में रहेंगे तो डिकम्पोजिशन में देरी होगी, इसलिए नेचर ने एक व्यवस्था बनाई है कि श्रेडर्स उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो डिकम्पोजर्स के लिए आगे का काम आसान हो जाता है. कुछ ग्रेजर्स होते हैं, कुछ मैक्रो इन्वर्टिब्रेट, वो इन पत्तियों पे और जो मैंने वुड लॉग बताए थे या स्टोन्स बताए थे उन पे सॉरी, उनके ऊपर जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ पे वो फीड करते हैं, तो दे आर नोन एज ग्रेजर्स. और स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप करके खाते हैं, तो स्क्रैपर्स होते हैं. कुछ कलेक्टर्स होते हैं, पानी में बहते हुए जो फूड मटेरियल होते हैं उसको फ़िल्टर करते हैं अपने अपेंडेजेस के थ्रू और उस पर फीड करते हैं. कुछ माइनर्स होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं, कुछ पियर्सर्स होते हैं. पियर्सर्स मतलब पियर्सिंग करना, छेद करना. वो कुछ ऐसी चीज़ों में जो ऑर्गेनिक मैटर में खास करके जब पियर्सिंग करते हैं तो वो पियर्सिंग भी उस ऑर्गेनिक मैटर के फास्ट डिकम्पोजिशन में बड़ी हेल्पफुल होती है. तो समहाउ दे आर कंज्यूमिंग इट, and on the other hand at the same time they are helping the decomposers to decompose it very fast. So they are playing two roles with their different feeding ecologies. Predators होते हैं जो दूसरे छोटे एनिमल्स पे या प्लैंकटन पे फीड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, तो they also have their own role in nutrient cycling, in food chain, in energy flow. So these are some of the functional feeding groups of aquatic invertebrates. So you can see here the collection of invertebrates. You see the Surber sampler. Students are using this Surber sampler. It is used in flowing streams, shallow streams, 6 to 8 inch stream. If it is there, a type of habitat is there, then we can use this.
This is D-frame net. This is also used in the margin of streams, shallow streams. So these are some of the sampling strategies and methods which are normally adopted by our team also, and by adopted by others also. The fishes, I think there is no need to explain the fishes. Actually this presentation has so many slides which are for students and working in different areas. If somebody is working in different areas, so some of the slides are for others also, but not for zoologists, because we all know about this. Yes, decomposers are also very important. They play very important role. Fungi and bacteria, they break down the leaves and other organic matter, and they consume the food, and they also break down the dead organisms and recycle the nutrient. So decomposers are also very important in river ecosystem. And normally as a zoologist or as a even as a limnologist, we sometimes ignore these decomposers. So we should pay proper attention towards the decomposers also, because they are also very important. अगर जैसे कहीं बहुत ज़्यादा सीवेज आ रहा है, सीवेज पोल्यूशन हो रहा है, तो एंड मोस्ट ऑफ द सीवेज इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो डेफिनेटली दे आर द डिकम्पोजर्स हु प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. और वो हाई बीओडी लोड वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ डिकम्पोजर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट शुड नेवर बी इग्नोर्ड इन रिवर इकोलॉजी. रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट है, ये भी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा. 1980 में वेनर्ट एंड अदर्स जो उनके कोवर्कर्स थे उन लोगों ने दिया था. और ये बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक रिवर स्टार्ट होती है कहीं से, ओरिजिन से स्टार्ट होती तो बड़ी छोटी होती है, और उसका अपना प्राइमरी प्रोडक्शन का, अपने ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन का कोई बहुत ज़्यादा सोर्स होता नहीं है. तो आसपास की जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्री से जो लेटर फॉल होता है, पत्तियाँ आती हैं, वो सारा का सारा मटेरियल उसमें आता है, और ये सब आके उसमें डिकम्पोज होता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होता है. तो रिवर का जो पहला हिस्सा होता है वहाँ पे ये सारा जो पतली सी स्ट्रीम होती है, ग्रेडियंट हाई होता है, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. अनफॉर्चुनेटली, आई एम वेरी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली वो ग्राफिक मैं आपको इस पर नहीं बता पा रहा हूँ, वो मेरी गलती से इस पर छूट गया है, अदरवाइज़ होता. उसके थोड़ा आगे रिवर बढ़ती है तो थोड़ा सा प्लेन में आती है. जब थोड़ा प्लेन में आती है तो वहाँ पे जो ग्रेडियंट कम हो जाता है, और कम ग्रेडियंट होने की वजह से वहाँ पे फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है. और उसके बाद क्योंकि न्यूट्रिएंट काफ़ी तब तक आसपास के जो ऑर्गेनिक मैटर से आ चुका होता है, तो अपना जो ऑटोक्थोनस और एलोक्थोनस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ऑटोक्थोनस का प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है. और उसके बाद जब नदी आती है टर्शरी जोन में, तो यहाँ ये देखिए, आप देखिए ये अपर रीचेस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स होती हैं, नैरो होती हैं, शेडेड बाय रिपेरियन कैनोपी, आसपास घने उसकी झाड़ियाँ, वो पेड़ होते हैं. लो टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है. और आप देखिए वहाँ पे सबस्ट्रेट बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं जब नदियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ पे, और करंट बहुत ज़्यादा होता है. बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में डाइवर्सिटी कम होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे आसपास से आता है. और मैक्रो इन्वर्टिब्रेटर्स श्रेडर्स होते हैं, क्योंकि पत्तियाँ आती हैं, डेब्रिस आती है, तो उसको श्रेडिंग करने का काम वो करती हैं. और फिशेस जो है वो कम टेम्परेचर में और हाई वेलोसिटी वाटर में इंसेक्ट्स को फीड करने वाली फिशेस आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलनी चाहिए प्रैक्टिकली. लेकिन कंडीशंस चेंज हो रही हैं आजकल, तो हो सकता है कि इससे कुछ डेविएट हो जाए. मिडिल रीच जो होती है वहाँ पे रिवर जो है वो थर्ड या सिक्स्थ ऑर्डर की हो जाती है, थोड़ी सी वाइडर हो जाती है, टेम्परेचर वेरिएबल होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि आसपास से वेस्ट मटेरियल आने लगता है. सबस्ट्रेट थोड़ा छोटा हो जाता है, बड़े बड़े बोल्डर की जगह आपको छोटे कोबल्स दिखाई देंगे, पेबल्स दिखाई देंगे, और करंट भी इट इज़ नॉट दैट फास्टर. मिडिल रीचेस में बायोलॉजिकल कम्युनिटी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, पेरिफाइटन की संख्या बढ़ती है. मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, अब देखिए पहले श्रेडर्स थे, अब नाउ वी फाइंड ग्रेजर्स. वाई देयर आर ग्रेजर्स? बिकॉज पेरिफाइटन्स आर देयर. वाई देयर आर कलेक्टर्स? बिकॉज पेरिफाइटन्स आर देयर. एंड हाई डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस, क्योंकि वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफाइटन है फूड के फॉर्म में, इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं, तो वहाँ पे फिशेस की डाइवर्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज दी स्पेक्ट्रम ऑफ फूड इज़ वाइडर. देन लोअर रीचेस, जहाँ बड़ी नदियाँ आती हैं, सिक्स्थ ऑर्डर उससे ज़्यादा आती हैं, चौड़ी हो जाती है नदी, सबस्ट्रेट रेतीला हो जाता है, रेत ज़्यादा पाई जाती है. लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि प्लैंकटन
और दूसरे सस्पेंडेड सॉलिड्स बढ़ जाते हैं तो लाइट पेनिट्रेशन रिड्यूसेस. टेम्परेचर इज़ हाई बिकॉज इट इज़ ओपन, देर इज़ नो शेडिंग. टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, करंट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है और ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है. प्लेन में आ गई नदी, प्लेन में आ गई तो उसका जो है करंट स्लो हो जाता है. लोअर रीचेस में जाते हैं तो आप इसमें देखिए कि और इसमें परिवर्तन होता है. मेरे ख्याल से मैं काफ़ी समय ले चुका हूँ आयोजकों का. तो ये कुछ रिवर इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन विच आई वांटेड टू डिस्कस स्पेशली with my younger friends. And if you have more questions, you can send your questions to me through your this message box, and definitely I'll try to within my limited knowledge, because I am seeing that very senior professors are here. Professor Vaikar, I can see Dr. Gunwan Joshi, my teacher, my senior. So most of the senior persons are here, and I know very little about the river ecology, so I will try to solve your queries. So this is all about so this is our team. We are working on various rivers in central India, Narmada, Tapti, and small rivers around Bhopal. So the only take home message of today's this small discussion and interaction is, let them flow, let the rivers flow, and let our youngsters also flow. आप अपना काम करते रहिए अच्छे से. बहुत अच्छे टीचर्स आप लोगों को मिले हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि बहुत कुछ हम यहाँ से सीख के जाएं. इस सेमिनार से, इस वेबिनार से हम बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएं. और मैं डॉक्टर शर्मा से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आदरणीय पांडे साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी आदरणीय ZSI के जो सीनियर लोग हैं, हमारे शिवेश सिंह जी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर RJ राव साहब हैं. ही इज़ ऑल्सो वेल नोन zoologist. Because he is busy in some other work, so he is not able to attend today. But these are very senior professors, so I request all the youngsters to please follow whatever our senior professors are teaching us. So thank you very much. If you have some queries, you can send it to me directly. Thank you very much. Thank you, Dr. Shailendra, for giving me this opportunity to interact with luminaries of zoology and also the youngsters. And in coming years, they are blooming up as the experts in zoology. So thank you very much once again. Thank you. Thanks a lot.